Because a pain management is a very vast subject. It's a very vast subject. There is no doubt. The most people are suffering from the pain. तो आज क्या है, पेन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इज अ वेरी बिग टॉपिक nowadays. Every person, or you can say the maximum person, is suffering from the pain. Why the pain is the most important in acupuncture? Can you tell me, anyone? Yes? Anyone have any idea? एक्यूपंक्चर से पेन से, या एक्यूपंक्चर या अल्टरनेटिव मेडिसिन में जब बात करते हैं कि पेन से रिलेशन क्या है, व्हाट इज व्हाई इज सो फेमस इन एक्यूपंक्चर इन पेन मैनेजमेंट? कैन यू टेल मी, एनीवन? Yes. Because it is the acupuncture is effective tool for the pain management. This is what I know. Acupuncture and moxibustion, acupuncture, moxibustion, cupping, and chiro. These four modalities is a very good for the pain management. Acupuncture, moxibustion, cupping, and chiro. So we have combined in our course in the exclusive training on the pain management. So due to that, you can understand why is acupuncture is the most important in a pain management. Because in acupuncture, it's a very good topic, a very good you can say method for the pain management, because acupuncture has a very good for that, because the diagnosis part is a very good. Why? The diagnosis part. The diagnosis part is very important in acupuncture. See, first of all, we have to know what is the pain. What is the pain? Can you tell me, anyone? सर आवाज आ रही दूसरी. What is the pain? आपको नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है. मैं वाइस दूसरी आवाज मिक्स हो. आवाज आ रही है. दूसरी आवाज मिक्स हो रही है. बॉडी का पोस्टर में से अलाइनमेंट होने से बॉडी का पेन आएगा सर. Pardon? What is the pain? Misalignment of body, they come up to pain. पेन का जो डेफिनेशन है, वो पेन क्या? अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद द एक्चुअल पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, जो हमारी बॉडी में जो एक्चुअल जो होता है मोमेंट. There is a many type of pain we will discuss, and many method we can treat the pain, right? तो पेन का जो मीन्स होता है कि एक होता है कि पेन विद द मूविंग, यानी आपका जो मोटर नर्व है, मोटर नर्व यानी कि यार रेंज ऑफ मोशन इज आल्सो इज एक्यूट, बट स्टिल देयर इज अ पेन, एंड वन पेन इज have restricted your the motion also, yani your mobility is also restricted. You cannot lift your hand properly like this. You can lift your left hand, but you can't you can't lift your. Please mute yourself. Please mute yourself. You can lift
without pain and your motion is a very proper. In another hand, you have some problem in your shoulder, that's why you can't lift your hand properly. Right? On the cervical area, one patient has says, I have no problem. They can move neck upward to downward, lateral to lateral side, left side. But his complaints कि when I move my neck on the left side or right side, there is a pain. So there is a one thing, one is a movement. One is a movement. If your movement is a your movement is a accurate or proper, but still with the pain. Why is pain there? Because there is some obstruction. We will learn about the through the five element and through the yin and yang and the chi blood or body fluid. What is the five element and why is it so important in acupuncture for the diagnosis purpose? Right? Clear? See. The massage nerve cell to the brain, ये एक मसाज मैसेज जाता है कहाँ पे नर्व का वो कहाँ भेजता है ब्रेन को. It's called the nociception. So there is a different kind of pain. So there is a cycle on your screen. A patient who has a complaint, I have a pain on here, you need maximum pain. When I move my neck, there is a pain. But a patient comes to you because I have a pain on the here, very sharp pain. I cannot move my neck or hand or knee, shoulder, anything. Right? वो कुछ भी complain कर सकता है. So first of all, you have to diagnose what is the type of pain. It is related to the muscle, bone, nerve, waveform, and psychosomatic pain. तो यहाँ पर एक्यूपंक्चर में हमको सबसे पहले क्या सीखना है? We have to learn about the five elements. There is three things has given on your screen. One is a muscle, one is a bone, one is a nerve. So which organ is responsible for the muscular pain? Yes, can you tell me? Brain. Spleen. The right answer is spleen. Which organ is responsible? Please mute yourself. I request to all, please mute yourself. Which organ is responsible for the bone pain? Kidney. Right answer is kidney. It's a muscle. No. Muscle से related अगर कोई pain है तो we have to treat the spleen. If there is any pain related with the bone, we have to treat the kidney. If there is any pain related to the nerve, what will you do? Every pain is related with the nerve. नहीं, if there is any pain related to the nerve, what will you do? Hard. Heart? Yes. Nerve is related with the brain. The nerve is related to the brain, but nerve is related to the brain, there is no doubt. But अगर nerve ligament tendons involved है joint के अंदर, तो which organ is responsible is the liver. Through the five elements, we can diagnose and treat the patient, right? So three things Right. on your screen: muscle, bone, nerve, spleen, kidney, and liver. More responsible for this the joint pain. Yes. Anyone want to say something? Why? I'm coming on that. तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइव एलिमेंट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं कॉज ऑफ पेन पे.
तो फाइव एलिमेंट थ्योरी पे जैसे हमने बात किया कि फाइव एलिमेंट थ्योरी इज द मोस्ट रिलेटेड टू द पेन, व्हाई? Yes, can you tell me anyone? To choose the right organ, then we work on that organ, the acupuncture. Yes. See, you are on the screen. There is a five element, right? Or give me 1 minute, please. So first of all, we have to know about the five element theory. Then you can understand what is the type of pain, right? See here. See, there is a five element. यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये कलर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है? Yes, sir. Okay, fine. So why is there five element related to the your pain management? So सबसे पहले before that we have to know what is the five element. Yes, can you tell me? The five element is a process of life and phases of disease. Through the five element you can diagnose which the condition and the degree of pain is the degree of pain. Yani wood type is pain. Pain is a wood type. Wood type pain. What is a wood type pain? Because wood type pain क्या करता है? Wood type pain always क्या करता है? ये move करता है, इसके अंदर movement होती है. क्या होती है? Movement होती है. Because always the wood type pain always क्या होगा? वो shifting pain होगा. वो एक जगह fix नहीं होगा. Patient comes to you and he complains, I have a suffering from the pain. A cervical, shoulder, low back, knee, calf muscle, yeah, anywhere in your body. But the pain is क्या? The shifting pain. It's called the shifting pain. So shifting pain is related to the which element? Wood. Wood element. See here. Ligament and यहाँ पे दिया है ligament and tendons. तो joints के लिए if there is any patient who has a pain on the related to the joint, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? Wood element को देखेंगे. If there is any type of pain, joint pain, either is a shifting pain or fixed pain. There are two type of pain. One is a shifting pain, one is a fixed pain. A patient complains to you, I have a pain here on the anywhere in the body. For example, I have a pain here, but it is not related to the joint. Right? Patient indicates, I have a pain here. I have a pain here, but it is not a joint, it is a muscle. You can understand where is a pain and the type of pain. कहाँ पे? Patient is complaining, I have a pain on my joint, on the ankle, wrist joint, elbow joint, and the shoulder joint, knee joint. नहीं, जब भी वो joints के बारे में बात करता है, patient still about the I have a pain with my joints. तो जहाँ पर joints की बात आएगी, जब भी वो बोलेगा patient I have a joints pain,
राइट। जैसे जॉइंट पेन्स की बात करेंगे तो वुड एलिमेंट हैज इन्वॉल्व and first you have to treat the liver chi stagnation. Please note down. आपका पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? What is the first treatment? Liver chi stagnation. Right? Clear? अगर पेशेंट कंप्लेन करता है सबसे पहले कि आई हैव ए पेन, कहां पे? जॉइंट्स में। जॉइंट्स पेन में अगर वो कंप्लेन कर रहा है, जॉइंट्स पेन, राइट, तो विच ऑर्गन हैज इन्वॉल्व? लीवर। So what will be your treatment? Your treatment will be the liver chi stagnation. The second one, liver blood stagnation. I am sharing my experience. I have a treated maximum patient with the pain, right? तो अगर पेशेंट कंप्लेन करता आई हैव अ ज्वाइंट पेन, उसको ज्वाइंट से रिलेटेड अगर कोई पेन है तो वो कौन सा ऑर्गन है? वुड एलिमेंट हैज इन्वॉल्व, राइट? बट अनदर पेशेंट कम्स टू यू, he says I have a muscular pain. I have a muscular pain. उसको ज्वाइंट से रिलेटेड नहीं है, वो पेशेंट को पेन ज्वाइंट से रिलेटेड नहीं है। तो पहला पेन क्या हुआ? ज्वाइंट पेन। विच ऑर्गन हैज बीन इन्वॉल्व? यस, टेल मी। लीवर। Liver. तो what is your treatment? Liver key Liver chi stagnation or liver blood stagnation. And in some cases, you can give the both liver chi और blood stagnation, दोनों का आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक साथ। लीवर chi और लिवर ब्लड स्टैग्नेशन का एक साथ आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आफ्टर गिविंग योर ट्रीटमेंट, पेशेंट को क्या होगा कि जो ज्वाइंट से रिलेटेड है 50 to 60% और मोर देन, उस पेशेंट को पेन चला जाएगा, ज्वाइंट से रिलेटेड है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ज्वाइंट्स पेन अगर हो रहा है पेशेंट को, हमने केस हिस्ट्री लिया पेशेंट की, वो कब से हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उसको, चिकनगुनिया हुई, डेंगू हुआ या फीवर हुआ या कोई और 2 से 4 महीना पहले उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वो केस हिस्ट्री हम फिर उसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट ये बोलता है कि आई हैव अ जॉइंट पेन, तो आंख बंद करके, मतलब आपका डायग्नोसिस क्या है कि यहाँ पे लीवर ची और लीवर ब्लड स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम हो सकती होगी, तो लीवर ची और लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट दे देंगे। Another patient comes to you, and the patient who has a complaint, I have a low back pain. When you check, आपने जब चेक किया तो उसके क्या? It is not related to the joint, it is related to the muscles. Patient complained to you, I have a thigh pain, I have a calf pain, I have a shoulder pain, I have a shoulder pain. But when you have checked, there is no joint, there is a muscle, there is a muscle, there is a muscle. So what will you do? You have to treat the spleen chi deficiency का ट्रीटमेंट देना, right? Clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. It is clear, but I have question. Can I ask question? Yes, sir. Why not? How can we differentiate between muscle pain and nerve pain? Or
Because you're a doctor, it's your duty, you have to first, before the treatment, you have to diagnose. The pain is related to the bone, muscle, nerve, refer. Yeah. My question is how to know this pain is from the muscle or from the nerve or from this Yeah, to. because we are going to teach you about this. We are going to teach you. Okay, thank you. Yeah, we Great. are going to teach you so how to identify which pain is related to the muscle, a bone, nerve, refer, and psychosomatic pain. We are going to teach you. Okay. No problem. Okay? Clear? Got it? Hello? Now is it clear? Clear. Yeah, Got clear. it. Yes. Okay. Yeah, got it. And some patient complains to you, "Ki I have a pain with the bone." So how to diagnose it is related to the bone? Yeah. How to diagnose? See, it's your duty before the treatment. You have to check. You have to check. What will you check? You have to check. There is a muscle. Trapezius muscle is there. Trapezius muscle is there. But patient complains, I have a pain when I move my neck, then I feel here pain. So you have to check if there is a pain related to the bone or muscle, because there is a bone and here is a muscle also. So when your patient moves his neck, then you have to check the muscular pain is there, the muscle pain is there. So only one point is a very good point. If there is any muscular pain, GB34, please note down. GB34. Muscle and tendons. You put the needle on the GB34 only. If there is shifting pain in your body, GB20 is a very good point. GB20 for the shifting pain. If there is a muscle involved anywhere in a body, GB34 is a very good point for the muscular pain. Only muscular. But patient, when you check, when you diagnose, the patient muscles has become very stiff, very weak, very. Then what your treatment? Your treatment will be good. Is bleaching. Clear? I request please stop your video and is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. क्योंकि आप अपने वीडियो को स्टॉप नहीं करेंगे तो वन मिनट प्लीज Mr. Syed Shahid, please stop your video. Yeah, thank you very much. Okay. So the answer कि joints pain में आप क्या करेंगे? What will you do? Will give you the treatment? Liver cheek, liver blood stagnation. How to diagnose if the joint pain patient? जब आपके clinic में अगर patient comes to your clinic, he says, I have a problem with the joint pain. I have a problem with the muscular pain. I have a pain on the low back. अगर ये पेशेंट आपको बोलता है तो बताया if there is a shifting pain, GB20 is a very good point for the shifting pain. First put your the needle on the GB20. If there is any muscular pain, GB34 is a very good point for the muscular pain. But patient comes to you and his complaint, I have a problem related to the bone. I have a problem related to the bone. So what is your treatment? Which organ is related to the bone? Kidney cheese deficiency. Kidney. Kidney has involved. अब वहां पे क्या करेंगे? What will you do? The kidney
to give the treatment of the kidney chi. Kidney chi को you have to tonifiy the kidney chi. अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी. अब यहाँ पे क्या there is a two thing, one is a yin, one is a yang. तो yin में टंग की डायग्नोसिस क्या होगी और यांग में अगर यांग की डिफिशियंसी यिन की डिफिशियंसी है तो टंग विल कैसा होगा. इफ देयर इज ए यिन डिफिशियंसी देयर इज नो कोटिंग एट ऑल. ऐसे में किडनी यिन में अगर प्रॉब्लम होगी द किडनी यिन डिफिशियंसी अगर होगा तो देयर इज नो कोटिंग एट ऑल. क्या होगा, टंग में कोई भी कोटिंग नहीं होगी. टंग क्या होगी, देयर इज नो कोटिंग एट ऑल. किडनी इन में लॉन्ग वर्टिकल and the some horizontal cracks is there and the some patient some horizontal cracks on his tongue, his or her tongue. ये क्या है, किडनी यिन को बताता है. अगर किडनी यांग में डिफिशियंसी है, किडनी यांग की डिफिशियंसी है, किडनी यांग अगर डिफिशियंसी हुई है देन तो टंग क्या होगा, इट शुड बी द फ्लैपी. क्या होगा, इज द फ्लैपी, more moisture and टंग क्या होगा, swollen होगा. नॉर्मल टंग से ज्यादा ये होगा, टंग का जो कलर होगा वो पेल ज्यादा होगा, रेडनेस कम होगी. इसके अंदर रेड ज्यादा होगा, पेलनेस कम होगी. तो यिन के अंदर टंग क्या होगी, रेड होगी, पेलनेस कम होगी. यांग के अंदर पेलनेस ज्यादा होगी, रेडनेस कम होगी. यिन में क्या होगा, there is no coating होगी, there is some vertical crack and horizontal crack, one vertical and some horizontal crack. किडनी यांग में डिफिशियंसी में क्या होगा, तो जब आप टंग देखेंगे तो टंग क्या होगी, शुद्धता पेल होगा, उसके अंदर स्वेलिंग आएगी, उसके अंदर रिटेंशन ऑफ फ्लूइड विद मॉइस्चर ज्यादा होगा और टंग फ्लैपी होगी. राइट. तो यहाँ पर क्या है कि पेशेंट कम्स टू यू एज कंप्लेंट कि आई हैव अ बोन पेन. राइट, आई हैव अ बोन पेन. What is the GB? So GB is a GB gallbladder is the short form of the GB is the gallbladder. ये पॉइंट का नाम है GB20. तो जब हम मेरिडियन स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर सारे पॉइंट्स की लोकेशन, इंडिकेशन, डिफिनेशन, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी कि कैसे आप पॉइंट को लोकेट करें, हाउ टू लोकेट द पॉइंट और हाउ टू इंसर्ट द डिटेल. राइट, क्लियर? Yes, sir. तो अब पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि मुझे बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी मॉरल ड्यूटी क्या बनती है, बिकॉज यू आर द डॉक्टर और यू आर द थेरेपिस्ट, तो आपको चेक करना पड़ेगा. यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक. चेक करना होगा कि पेशेंट को जो पेन हो रहा है एनीवेयर इन एग्जांपल. यस, Can you speak in English a little bit? no, Because okay, we have tried to sorry. speak English and Hindi both. Okay, yeah. Okay. Okay, you have to check. You have to check. It's your duty because you are a doctor. You are a therapist. It's your duty. You have to check. You have to diagnose before the treatment, right? If there is a pain related to the bone or muscle or nerve. For example, there is a cervical pain. Patient complains, I have a vertigo, dizziness, and pains comes down along with the hand. The patient complains, I have the tingling sensation of my hands, numbness or tingling sensation in my hand. So what will you do? If there is a patient complaining to you, I have a tingling sensation. So why the tingling sensation is there? Because nerve compression on the cervical area, this pain goes to the hand because the nerve compression on the here on the cervical area. Clear? So you can diagnose. Your diagnosis Clear. is a patient who has on a local pain. You have to check there is a muscle or bone. A patient complains, I have a pain on a cervical area, but pain goes to my hand and I feel the tingling sensation and numbness in my hand.
तो नर्व है इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हियर योर द सर्वाइकल एरिया नर्व हैव कंप्रेस ऑन द योर सर्वाइकल एरिया. क्लियर? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? Clear. ये क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो ऐसा नहीं कि पेशेंट आया और आपने डायरेक्ट उसको ड्रिलिंग स्टार्ट किया. आपको वहां पे क्या है, आपको यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू चेक कि देयर इज अ पेन रिलेटेड टू द मसल, बोन और नर्व कंप्रेशन. सर ये वर्टिगो का कनेक्शन भी उसी से है क्या, ये स्लिप डिस्क से ही है? If there is a patient comes to you, I have a problem with the pain, you have tried to do the treatment, आपने क्या किया, you आपने ट्रीटमेंट पूरा दे दिया वर्टिगो, but something is problem is on his teeth, उसके दांतों में कुछ प्रॉब्लम, उसकी वजह से उसको चक्कर भी आता है. राइट? ओके। आपने सर्वाइकल पेशेंट कम टू वर्टिगो, आपने क्या, सर ने बताया था कि उसको वर्टिगो है तो उसको सर्वाइकल, आपने यू हैव टू ट्रीटेड द सर्वाइकल एरिया, बट स्टिल देयर वर्टिगो. व्हाई? समथिंग इज अ प्रॉब्लम, इज मे बी ऑन हिज टीथ. तो आपको बिफोर ट्रीटमेंट आपको हैव टू आस्क, हैव एनी प्रॉब्लम योर टीथ और नॉट? राइट? ओके क्लियर? ओके सर। Clear. So here is a kind of the three type of pain you have written in there. Right? Yes. Any question? Hello. Any doubt? Any question? Clear. Yes, please say. Saying सर ये clear. Thank you. Thank you. Yeah, yeah. सर ये वर्टिगो का कनेक्शन कान से होता है ना? कान से भी कान हो, से भी होता या इसको बोलते हैं टिनिटस. टिनिटस के जो प्रॉब्लम होता है वो किडनी से होता है. टिनिटस में जो इन्वॉल्व होता है टिनिटस और मीनियर सिंड्रोम. टिनिटस और मीनियर सिंड्रोम. ये दोनों कंडीशन में चक्कर आते हैं, टिनिटस और मीनियर सिंड्रोम में. उसके अंदर किडनी हैंड इज इन्वॉल्व, टू ऑर्गन हैज इन्वॉल्व, किडनी और लीवर. अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा. किडनी यिन में भी प्रॉब्लम होने की वजह से आ सकती है और यांग की वजह से. यिन और यांग में दोनों में प्रॉब्लम होने की वजह से आ सकती है. राइट? और लीवर के अंदर जब यांग राइजिंग होती है, जब लीवर में यांग राइजिंग होती है तो उसको टिनिटस और मीनियर सिंड्रोम हो सकता है. दूसरा जो होता है, पेशेंट का जो पेन होता है वो मैक्सिमम होता है पॉस्चर की वजह से. द मेन प्रॉब्लम इज द पॉस्चर. So before the treatment, you have to check whether the patient posture is proper or not. So what is your duty? You have to fix. यानी उसके अंदर पेशेंट को क्या करना होगा, उस पेशेंट का आपको स्पाइनल और ये सर्वाइकल अलाइनमेंट यानी पॉस्चर करेक्शन करना होगा जो आपके कोर्स के अंदर दिया हुआ है. क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है, मैक्सिमम आई हैव सीन कि ऐसा होता है कि पेशेंट को जब आप चेक करते हैं उनका पॉस्चर का करेक्शन कर देते हैं तो 75% उसकी प्रॉब्लम चली जाती है. आपने पॉस्चर का चेक नहीं किया, आपने उसके अलाइनमेंट को चेक नहीं किया और एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबर्चन और कपिंग देते रहे, पेशेंट को रिलीफ उतना नहीं मिलेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द दिस पेन इज रिलेटेड टू द पॉस्चर. अगर वो पॉस्चर से रिलेटेड पेन है, पॉस्चर से रिलेटेड पेन है, तो सबसे पहले इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू करेक्ट हिज पॉस्चर. देन आफ्टर यू कैन गिव द एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबर्चन एंड कपिंग. राइट? ओके सर. तो नेचर ऑफ जॉब. अब यहाँ पे पेशेंट का क्या,
कि वो नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसके अकॉर्डिंग अ पेशेंट कंप्लेन, फॉर एग्जांपल, या पेशेंट कंप्लेन आई हैव अ लो बैक पेन, आई हैव अ लो बैक पेन. अब ये पेशेंट का जो सिटिंग का पोस्चर वो इसी तरह से है. पेशेंट का जो पोस्चर है वो ऑफिशियल जॉब करता है, उसका पोस्चर इसी तरह से रहता है. तो ऐसे में आप यहाँ पे देखिए जो स्पाइन होती है वो कैसे होती है, शुड बी लाइक दिस. तो अभी यहाँ पे क्या है कि वो सिटिंग पोस्चर में होने की वजह से ये क्या होगा, ये पोर्शन उसका कंप्रेस होगा और ये पेन गोज टू द बैक. तो व्हाट विल यू डू? आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं आप अपनी जॉब को छोड़ दीजिए, राइट? तो व्हाट विल यू डू? You have to check and you have to educate your patient. It's your duty. It's your moral duty. You have to educate your patient कि आपको जो पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ योर जो आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है, जो आप सेटिंग पोस्चर पे काम करते हैं उसकी वजह से आपको लो बैक पेन होता है. तो व्हाट विल यू डू? ऐसे में सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोस्चर करेक्शन ट्रीटमेंट देंगे, राइट? सर ये इसमें पोस्चर करेक्टर बेल्ट कैसा रहेगा? पोस्चर करेक्शन बेल्ट अभी स्टोन पेन पे हम बात नहीं करेंगे, स्टोन पेन में हम आगे बात. पोस्चर करेक्शन बेल्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी का स्पाइनल अलाइनमेंट बिगड़ गया है और उसको पेन आ रहा है तो सबसे पहले आपको उसकी स्पाइनल अलाइनमेंट देने के बाद पोस्चर करेक्शन बेल्ट को करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. कोई चीज अगर बिगड़ गई, अपनी अलाइनमेंट से वो हट गई है और उसके ऊपर आपने उसको पोस्चर करेक्शन बेल्ट बोला लगाने के लिए, तो पेशेंट को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका अलाइनमेंट ऑलरेडी वो बिगड़ा हुआ, राइट? ओके ओके सर, थैंक यू. या तो आपको यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल किसी को सर्वाइकल में पेन हो रहा है, तो अगर यहाँ पे सर्वाइकल में पेन हो रहा है तो उसको बोल दीजिए अभी आप क्या कीजिए, सिर्फ सर्वाइकल का बेल्ट लगा लीजिए. नहीं, यहाँ पे आपको सर्वाइकल को चेक करना पड़ेगा, इसके जो सर्वाइकल स्पाइन के अलाइनमेंट को सेट करना पड़ेगा. देन यू कैन एडवाइज कि यू कीप द कॉलर, राइट? राइट. तो अभी हम लोग रेफर पेन पे नहीं आते, तो मस्कुलर पेन क्या होता है, मसल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज अ मसल, टाइप ऑफ मसल्स क्या होती है, व्हाट इज मसल क्यों वीक होती है, इसको कैसे ग्रोथ किया जाएगा, इसका ग्रो कैसे करेंगे, कैसे मसल को बिल्ड करेंगे, ये सारी चीजें हम. फिर बोन. अब मसल के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या हाउ टू बिल्ड योर मसल. अगर पेशेंट की मसल्स वीक है तो व्हाट विल यू डू? यस एनीवन? एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन मसल के लिए नीड्स क्या होती है? प्रोटीन. Strength training. प्रोटीन. तो उसको क्या करेंगे, उसके उसमें आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू? आपको प्रोटीन इनटेक पेशेंट्स का बढ़ाना होगा. उसके बाद आप उसको कैलोरीज और उसमें क्या है उसको एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, क्या? यू बिल्ड योर मसल्स. फॉर एग्जांपल, पेशेंट आया, हैज अ सर्वाइकल पेन, ओनली सर्वाइकल पेन. एक चीज को सीख लीजिए, सब कुछ आ जाएगा प्रॉपर. उसको सर्वाइकल पेन होता है, वो अपने नेक को लेफ्ट राइट या अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है तो उसको चक्कर भी आता है, राइट? व्हाट विल यू डू? यू हैव टू चेक फर्स्ट. आप क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या करेंगे, व्हाट इज योर ट्रीटमेंट और व्हाट इज योर आउटपुट. कि वो नेक को मूव करता है, उसको गिडिनिस आता है, यानी गिडिनिस चक्कर आता है. तो ऐसे में चेक करें कि मसल इज अ स्टेट, तो मसल एंड बोन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. व्हाट विल यू डू? तो आप अपने क्लिनिक में ही उसको सबसे पहले एक्सरसाइज अपने अंडर गाइडेंस के अंदर स्टार्ट करेंगे. तो क्या होगा, उसको जो पेन होगा 2 से 4 दिन और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज रेंज ऑफ मोशन आप उसका इंक्रीज कर रहे हो.
अभी तक पेशेंट का मूव यहाँ तक हो रहा था, आपने ट्राई किया, उसके बाद मूवमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश किया, तो ये क्या है, मसल चूंकि स्टिफ है, तो क्या करेंगे, अगर मसल स्टिफ है तो उसके लिए सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है मायोफेशियल ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे पहले उसकी मसल को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। वो क्या होती है, स्पाइनल कपिंग से सबसे बेहतर होता है मायोफेशियल मसल रिलीजिंग टेक्निक। तो क्या है, मसल को आपने जैसे रिलीज किया, यानी मसल स्टिफ है। मैं अभी सर्वाइकल की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको कैमरे में सर्वाइकल दिखला सकता हूं, नंबर नहीं दिखला सकता अभी फिलहाल, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मसल स्टिफ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मसल को रिलीज करेंगे। मसल को क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, उसको किस मोड में लेकर आएंगे, रिलैक्स मोड। तो क्या करेंगे, मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक में मसल को रिलीज करेंगे। रिलीज करने का मतलब जो स्टिफनेस है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। क्लियर? सर इसमें ट्रैक्शन बेल्ट देना कैसा रहेगा, नेक ट्रैक्शन देना कैसा रहेगा? लेट मी कंप्लीट माय डियर, आई एम कमिंग ऑन दैट। तो सबसे पहले अगर उसकी मसल स्टिफ है तो उसकी मसल को रिलीज करेंगे। मसल को रिलीज करने के बाद फिर आप चेक करेंगे कि अगर पेशेंट को स्टिल पेन, अगर मसल रिलीज करने के बाद पेन है यहाँ पर, ऑन पेन स्टिल इज देयर, लेकिन वो पेन क्या होगा, पहले से 30 to 40% कम हो जाएगा। अब उसके बाद उसने एक्सरे निकलवाया, तो उसने बताया कि C4 और C5 के बीच में नर्व की कंप्रेशन है। तो व्हाट विल यू डू, यू हैव टू पुट ऑन द निडल ऑन द बिटवीन द C4 एंड C5। कैसे करेंगे, ये डायरेक्शन मैं आपको दूंगा, हाउ टू डू। अब यहाँ पे पेशेंट के आपने सर्वाइकल को चाहिए, यहाँ पर ट्रेपेजियस मसल थी, आपने क्या किया, उसको रिलीज कर दिया। पेशेंट का जो मूवमेंट था, नेक का मूवमेंट, वो पहले से ज्यादा बेटर हो गया। स्टिल देयर इज ए पेन। अब यहाँ पे अब पेशेंट ने बताया कि मुझे C4 और C5 में नर्व कंप्रेशन है, एक्सरे में देखा, तो आपको यहाँ पर यू हैव टू पल्पेट 1 2 3 4 5 6। तो 5 and 6 इन बिटवीन में आपको यहाँ पर निडलिंग टेक्निक, तो टेक्निक्स ऑफ निडलिंग ये आप लोगों को बताई जाएगी कि सर्वाइकल में अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे निडल का इंसर्शन होगा, राइट। और वहां पे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देना है नहीं देना, उसके साथ मॉक्सिबशन देना है नहीं देना, ये सारी चीजें आपको डिटेल में कोर्स में सिखाई जाएगी, राइट। हाँ, अब आपका क्वेश्चन क्या था कि उसको बेल्ट एडवाइजेबल है या नहीं, राइट। हेलो, यस सर, यस। अब बेल्ट की बात कब आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत कॉमन सी चीज बात, आप पैंट पहनते हैं, यस यस और नॉट, यस यस पहले पैंट पहनते हैं फिर उसके बाद बेल्ट लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल, मैं एक्यूपंक्चर को बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ कि हर एक एक आदमी को इस चीज की समझ आ जाए। तो आपने पहले पैंट पहना, उसके बाद बेल्ट लगाया। बेल्ट को लगाते टाइट करने के लिए कि ताकि वो मूव नहीं करता। तो पेन ऑलरेडी पेशेंट को अगर है, पेन अगर पेशेंट को है और उसकी मसल वहां पे स्टिफ है, तो अगर मसल उसकी रिलीज नहीं करेगी तो बेल्ट भी कोई काम नहीं करेगा। द आंसर, बेल्ट भी कोई काम नहीं करेगा। पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू रिलीज हिज मसल। उसके बाद जैसे मसल करेंगे तो उसका जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो इंक्रीज करेगा। उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर उसको है, जहां पे है वहीं पर आपको निडल करनी है। और नहीं वहां, सर, हाँ, सर मैं ये कह रहा था कि नेक के बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फिजियोथेरेपी में जो ट्रैक्शन देते हैं ना नेक का, मैं उसकी बात कर रहा था। नहीं नहीं, इन जनरल देखिए, जो फिजियोथेरेपिस्ट है जिन्होंने बीपीटी एमपीटी किया हुआ वो ट्रैक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ एक्यूपंक्चर है उनको ट्रैक्शन नहीं पता है, राइट। राइट राइट। तो ऐसे में वो ट्रैक्शन नहीं दे सकते। हाँ, आपको अगर पेन मैनेजमेंट की क्लिनिक को बहुत अच्छी तरह से रन करना है तो आपके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट होना जरूरी है आपकी क्लिनिक में। जो ट्रैक्शन दिया जाता है, ट्रैक्शन क्या करता है,
मैं आपको बता दूं, ट्रैक्शन क्या करता है, वो जो यहाँ पे कंप्रेशन है उसको, ये क्या है, वो कंप्रेशन को पहले स्टॉप करता है। ये जो कंप्रेशन होता है इसको पहले वो क्या करता है, स्टॉप करता है। ये कंप्रेशन जो होता है, ये कंप्रेशन जहाँ पे रूट नर्व कंप्रेशन है, यहाँ पे नर्व कंप्रेशन, जब आप ट्रैक्शन देंगे तो वो क्या करेगा, वो स्पेस को स्पैन करता है। तो वहां पे जो नर्व की कंप्रेशन वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है, राइट। राइट। इसमें सर्वाइकल में भी दिया जाता है, लंबर में भी दिया जाता है, दोनों केस में ट्रैक्शन दिया जाता है। तो ट्रैक्शन क्या करता है, वो ट्रैक्शन क्या करता है, वो खींच देता है। तो जो कंप्रेशन होता है उसको रिलीज मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रैक्शन की बात है, ऐसे एक्यूपंक्चर से आपको क्या करना है, अगर पेशेंट को मस्कुलर पेन है तो मसल को रिलीज कीजिए। बोन से रिलेटेड पेन, अभी मैंने बताया कि मस्कुलर पेन है एनीवेयर इन बॉडी। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बता दूं, अब पेशेंट हैज ए कंप्लेंट इज अ सर्वाइकल पेन, राइट। तो व्हाट विल यू डू, ठीक, उसके लिए एक क्या है, सर्वाइकल पेन के लिए एक डिस्टल पॉइंट होता है, वन इज अ डिस्टल पॉइंट LU7, ये डिस्टल पॉइंट फॉर सर्वाइकल पेन, डिस्टल पॉइंट फॉर सर्वाइकल पेन। अब यहाँ पे सर्वाइकल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, तो सबसे पहले क्या, पुट ऑन द डिटेल LU7। फिर इसके बाद क्या, मसल, अगर उसके लिए मसल है तो मसल में क्या है, GB34, मसल और टेंडेंस के लिए वेरी गुड पॉइंट। अगर वो पेन शिफ्टिंग है, मूविंग पेन है, तो उसके अंदर GB20 को ऐड कर दीजिए। इतना आप ट्रीटमेंट दे दिए, उसके साथ अगर मस्कुलर पेन है तो वहां पे क्या, सर्वाइकल एरिया में क्या होगा, स्पाइनल कपिंग, इसको बोलते हैं स्पाइनल कपिंग, स्पाइनल कपिंग, राइट। इतना दे दिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो treat the muscles to the near failure most of the time. Don't always the train to the failure with the very heavy weight. Supplement with the creatinine, और ये सारी चीजें आप देंगे। Another problem, what is a bone? Bone is a form. There is a 7 attributes. जो what we have eat, तो उसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा, the second is a blood, third is a adipose tissue, muscles, bone, bone marrow, sperm। तो अगर बोन वीक होती है, ज्वाइंट्स वीक होती है, तो इसके कई एक कॉज होते हैं। एक क्या होता है, ओवरवेट, एक क्या होता है, ज्वाइंट पेन के अंदर ओवरवेट होता है, ठीक होता है। दूसरा क्या होता है, ओवर एज, ओवर यूज। ओवर यूज का मतलब जो आप जिम वगैरह में जो वर्क करते हैं उनका ओवर यूज होता है ज्वाइंट्स का, उनको भी ज्वाइंट्स पेन आती है। दूसरा जो होता है वो एज से रिलेटेड होता है। तो अभी ज्वाइंट से रिलेटेड, अगर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो क्या आती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस। क्या आती है, ऑस्टियो आर्थरान एंड आइटिस। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थरान मतलब ज्वाइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर अगर यहाँ पे ज्वाइंट्स पे अगर आता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो ये ज्वाइंट के बीच के अंदर क्या होता है, कार्टिलेज होता है। फिर इनके बीच में क्या होता है, साइनल फ्लूइड्स होते हैं। अब ये क्या है, स्पेस, जब ये दो ज्वाइंट्स के बीच का स्पेस जब ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपस में कार्टिलेज इसके कम हो गए और फ्लूइड्स हो गई, मिल गई, और फ्लूइड इसकी ड्राई हो गई, तो ये दो ज्वाइंट क्या होता है, जो स्पेस होता है वो स्पेस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे आप मूवमेंट करते हो तो वो क्या है, बोन एक दूसरे बोन से टच करती है और पेशेंट को पेन आता है, यानी वो किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो व्हाट विल यू डू, ऐसे में क्या एक्यूपंक्चर काम करता है, ऑफ कोर्स इज एरियाज। तो इसके अंदर अगर ज्वाइंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके अंदर सबसे पहले आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो लंग्स ची डिफिशिएंसी। प्लीज नोट डाउन दिस, लंग ची डिफिशिएंसी।
ये लंग्स ची की डिफिशियंसी के जैसे आप ट्रीटमेंट देंगे, ये लुब्रिकेशन का भी काम करता है। लंग्स का काम क्या है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर, लंग्स का काम क्या है, लुब्रिकेशन और मॉइस्चरिंग को ये प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग ची ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर देखते हैं कि ची क्या करता है, ची इज ए वाइटल एनर्जी, वाइटल सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए। हमारे बॉडी के अंदर जो मटेरियल बेस होता है वो क्या होता है, ची होती है। ची ही ऐसी चीज होती है जो बॉडी के अंदर ब्लड को मूव करती है। ब्लड क्या है, एक हमारे बॉडी के लिए ब्लड लिक्विड फ्लूइड्स है, लेकिन ब्लड अपने आप मूव नहीं करती है। ब्लड कैसे मूव करती है, थ्रू द ची। तो क्या करता है, ची कैरी करता है। ची क्या करता है, कैरी करता है किसको, ब्लड को। ची कैरी टू ब्लड। तो यहाँ पे अगर ची की डिफिशियंसी है, अब यहाँ पे जो ची है वो आपको डायग्नोज करना पड़ेगा किस ऑर्गन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आई हैव ट्रीटेड थाउजेंड ऑफ पेशेंट मोर देन, तो इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि अगर पेशेंट कम आता है आपके पास कंप्लेन करता है कि आई हैव अ जॉइंट्स पेन, राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जॉइंट्स पेन की लंग्स ची की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दे दिए विद स्पाइनल कपिंग। जॉइंट्स पेन के लिए लंग ची की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दे दीजिए विद स्पाइनल कपिंग। आप ये देखिए आफ्टर गिविंग योर ट्रीटमेंट सडन, यानी कि जैसे आप पेशेंट आपने ट्रीटमेंट के लिए बेड पे लिटाया और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट दे दिया, आपके ट्रीटमेंट के देने के बाद ही उस पेशेंट को 50 to 60% एक ही सिटिंग में उसका बॉडी का जॉइंट्स का पेन चला जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अगर बोन को क्या चाहिए, कैल्शियम। बोन को क्या चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो वहां पे उसको पेशेंट को आपको कैल्शियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके कैल्शियम के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसमें क्या है कि उसके लिए जो एक्यूपंक्चर के लिए जो पॉइंट है, स्पेशल मोटिव पॉइंट, उसको बोलते हैं UB11। UB11 ये ऐसा है कि कहीं पे भी बोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ट्रीटमेंट में UB11 को ऐड कर लीजिए। ये आगे आपको बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को एक तो ट्रीट करेगा और फर्दर कोई भी डैमेज नहीं होने देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि UB11 इज सफिशिएंट, इसके साथ आपको कैल्शियम भी देना होगा। कैल्शियम का जो ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ से मिलेगा, आपको किडनी से मिलेगा। तो किडनी यिन और किडनी यांग दोनों का ट्रीटमेंट देना होगा। सर आपने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए लंग्स का ट्रीटमेंट करना है, राइट, और दूसरा लंग्स का नहीं, लंग्स ची का। हाँ मींस लंग्स ची का, और कपिंग करना है तो कपिंग Yeah. कौन सी वाली कपिंग करना है, फायर कपिंग या वेट कपिंग? नो 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 नो, अभी यहाँ पे ये क्लास के अंदर बताया जाएगा आपको कि यहाँ पे देखिए, अब आपको शॉर्ट में अगर हम आपको कोई चीज बता दें उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट को कंप्लेन होगी। अब यहाँ पे दो मूविंग कपिंग में दो होता है, एक मूविंग कपिंग होता है, फायर कपिंग होता है। तो इसके अंदर क्या है कि यिन और यांग को अगर आप समझते हैं, अभी हम लोग इसके बाद आते हैं, इसके बाद ये यांग पे आएंगे, तो यिन और यांग को अगर आप जानते हैं कि यिन का नेचर क्या है और यांग का नेचर क्या है, यांग का नेचर हीट का है और यिन का नेचर कोल्ड का है, राइट। चलिए मैं बता दूं तो यिन यांग पे यांग का नेचर हीट का है और यिन का नेचर कोल्ड का है। अब किडनी यिन की डिफिशियंसी है या किडनी यांग की डिफिशियंसी है। अगर यिन की डिफिशियंसी है तो कोल्ड है, तो यहाँ पे आप फायर कपिंग कर सकते हैं। अगर वो यांग नेचर है और ऑलरेडी इसके अंदर हीट बढ़ी हुई है तो फायर कपिंग क्या करेंगे, तो उसका वो पेशेंट का पेन और एग्रीविएट हो जाएगा। क्लियर? ओके सर, समझा? यस सर। तो अब आप यहाँ पे ये समझ लेंगे अगर बोन से रिलेटेड है तो बोन से अगर रिलेटेड आते ही पेशेंट बोलता है मुझे जॉइंट्स पेन है, ये बोन से रिलेटेड इशू है, तो वहां पे बोन को आपको समझना पड़ेगा। अब बोन के अंदर क्या क्या समझेंगे, हाउ टू बोन बिकम वीक, क्यों होती है आपकी बोन वीक, क्यों होती है। एक क्या है, एज, बॉडी और डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। ऐसे में क्या है कि आपको बोन के लिए क्या चाहिए, कीप द मिनरल्स इन द बोन,
तो बोन वीकर क्यों होती है? प्रोसेस, अब इसके अंदर भी सर्टेन एज होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बोलूंगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने देखा, लेकिन पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया दोनों चीजें होती है, ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया में क्या होती है? बोन हार्ड हो जाती है। क्या होती है? हार्ड हो जाती है, राइट। पेनिया में, प्रोसेस में क्या होती है? बोन सॉफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों में किडनी इन और किडनी यांग पे आपको ट्रीटमेंट देना होगा। अगर बोन हार्ड हो गई तो उसको सॉफ्ट कैसे करना है? यानी अगर हार्ड हो गई तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट वीक हो गया? वाटर एलिमेंट वीक हो गया। अगर सॉफ्ट हो गई तो इसके अंदर अर्थ एलिमेंट वीक हो गया। तो ऐसे में किडनी इनके साथ इसके अर्थ एलिमेंट को कैसे करेंगे और इसमें वाटर एलिमेंट को कैसे बनाएंगे कि ये जो हार्ड बोन है वो सॉफ्ट हो, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा नर्व, मसल्स एंड बोन, जॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। अब यहाँ पे जो नर्व से रिलेटेड आती है, तो नर्व क्या होती है? एक बाइंडिंग फाइबर्स होती है, ठीक है, इसकी एक शीट्स होती है। अब वो नर्व क्या होती है? जब यहाँ पे कंप्रेस होती है, कहीं पे भी नर्व कंप्रेस होती है, तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ नर्व। एक तो हम जो नर्व को होती है नर्वस सिस्टम होती है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या? पीएनएस कहते हैं। तो देयर इज टू टाइप ऑफ नर्व। अब इसका अलग अलग वर्क है, इस नर्व का वर्क है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर ज्वाइंट से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, तो उसका ट्रीटमेंट भी मैंने बताया, स्प्लीन। और अगर मसल स्टिफ है तो उसके लिए एक सिंगल पॉइंट GB34 इज सफिशिएंट। मूविंग पेन है तो GB20। बोन से रिलेटेड है तो बोन इज रिलेटेड टू द किडनी, और किडनी में दो तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, किडनी इन और किडनी यांग, राइट। फिर उसके बाद आता है रेफर पेन। रेफर पेन का मतलब ये होता है कि अभी कोई पेशेंट बोलता है मुझे राइट शोल्डर में ही सिर्फ पेन आता है, कोई बोलता है मुझे लेफ्ट शोल्डर में पेन, कोई बोलता है मुझे राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, दिस इज योर एब्डोमेन, दिस इज योर एब्डोमेन, इट इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट और मेनी मोर। अब वो बोलता है कि नहीं मुझे सिर्फ इसी साइड में पेन आता है, कोई बोलता है मुझे इसी साइड में पेन, कोई बोलता है शलवार, वो अपना क्या बोलता है सेंटर में पेन आता है लो बैक में, कोई बोलता है मुझे यहाँ पे पेन आता है, कोई बोलता है मुझे यहाँ। तो अभी अगर ये रेफर पेन है, क्या है? वो किडनी से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड। अब किडनी में क्या हो सकता है? स्टोन भी हो सकता है, किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, किडनी को जो चीजें चाहिए होती है वो चीजें आपको अगर किडनी को नहीं मिलती है, यानी किडनी का जो क्या है, अभी कॉर्टिकल सिस्ट हो गया, फिर किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, किसी को किडनी इलाज हो गई है, एड्रिनल ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गया, ऐसे में भी किडनी से रिलेटेड उस पेशेंट को पेन आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको या क्या है, उसके पॉस्चर को भी देखना पड़ेगा, यानी नेचर ऑफ जॉब को भी देखना पड़ेगा। तो पॉस्चर में जब हम देखते हैं तो उसमें नेचर ऑफ जॉब हमेशा शामिल होता है। तो कभी भी आप ट्रीटमेंट करने से पहले नेचर ऑफ जॉब पेशेंट के बारे में जरूर। तो रेफर पेन जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर या पार्टिकुलर कोई भी एरिया बता रहा है, तो यहाँ पे आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, राइट, क्लियर। अभी पेशेंट आए बोले मुझे सिर्फ राइट नी में ही पेन होता है, कोई पेशेंट बोलता है मुझे लेफ्ट नी में ही पेन होता है, तो व्हाई इज द राइट नी, व्हाई इज द लेफ्ट नी? तो यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें कि कभी भी नी का अगर ट्रीटमेंट करना है तो आप नी पर डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करके लंबर और सैक्रम का जरूर ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि यहीं से जो नर्व जाती है वो नी पे जाती है, यहीं से जो नर्व जाती है वो नी पर जाती है और उसको नी पेन होता है। हाँ, अगर नी में अगर कार्टिलेज यानी स्पेस रिड्यूस हो गया है, स्पेस रिड्यूस होने के बाद उसके ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी आप लंबर एरिया का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्लीज नोट डाउन, अगर आप लंबर और लोअर एक्सट्रीमिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सॉरी, कभी भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेग्स का एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, तो हमेशा लंबर और सैक्रल का जरूर ट्रीटमेंट करेंगे। उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस और रुमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, तो गाउटी नहीं हो, कुछ भी हो,
उसको नी की प्रॉब्लम है, हील की प्रॉब्लम है, काफ मसल्स की प्रॉब्लम है, एंकल पेन की प्रॉब्लम है, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि यहाँ पे आपको लंबर और सैकल का साथ में ट्रीटमेंट करते हुए चलना होगा, तो आपका जो रिजल्ट फास्टर भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्लियर? समझ आ गया? यस सर। आवाज तो बड़ी स्लो निकली। अब उसके अंदर जैसे लोग बात करते हैं यिन और यांग पे, हम पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसमें ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है, किस पॉइंट पे लगाते हैं, किस पॉइंट पे नहीं लगाया जाता है। फिर यहाँ पे टेस्ट मशीन आती है, पैडिंग आती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे 5 एलिमेंट को देखा, अब हम लोग ये यांग पे देख लेते हैं कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट यिन एंड यांग। ये acupuncture believe if there is a exist anything in the world, कुछ भी अगर वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, यानी इतना उसने कंफर्म बोला है कि इफ देयर इज एनीथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज कम टू टू कैटेगरी, आइदर इज ए जिन, आइदर इज ए, इसके अलावा कुछ और होता ही नहीं है। क्या? इसके अलावा कोई कैटेगरी है ही नहीं है, वो चाहे वो यिन कैटेगरी हो, वो या तो वो ज्ञान। अब इसमें जैसे अब आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप लीजिए, मैं इसका आंसर देता हूं। अभी मैंने बोला कि जॉइंट्स पेन, अभी यहाँ पे पेन मैनेजमेंट पे हम लोग बात करते हैं, पेन मैनेजमेंट, ठीक है। पेन मैनेजमेंट पॉइंट बात करते हैं, एक बोलता है जॉइंट्स पेन, ठीक है। तो आपको क्या है, कैसे आपका क्वेश्चन क्या होगा, कब होता है आपको? बोलता हूँ मैं एसी में ज्यादा रहता हूँ तो मुझे जॉइंट्स पेन पकड़ लेता हूँ। ये बोलता है मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ तो मुझे जॉइंट पेन स्टार्ट हो। एसी में ज्यादा काम कर रहे हैं यानी वो क्या है, कोल्ड टाइप ऑफ पेन है। हीट ज्यादा है यानी हॉटनेस ज्यादा है, यानी वो यांग टाइप ऑफ पेन है, हॉट टाइप ऑफ पेन। बोलते हैं जब कोई एक्टिविटीज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पेन आता है, एक्टिव रहते हैं तो पेन आता है। एक्टिव का नेचर क्या है, वो यांग नेचर। हम आराम करते हैं तो पेन आता है, तो आराम जब रेस्ट करते हैं वो क्या, वो पैसिव नेचर। कोई बोलता है मुझे डे में पेन ज्यादा आता है, तो बोलता है मुझे नाइट में पेन ज्यादा आता है। अब यहाँ पे जब आप या पेशेंट से पूछेंगे तो ये बताया कि डे में ज्यादा है वो या नाइट में। तो ये क्या होता है, देयर इज yin टाइप ऑफ पेन और दिस इज yang टाइप। इस yin टाइप ऑफ पेन इज अ वेरी स्लो पेन, माइल्ड पेन, मीठा पेन बोलते हैं ना, हल्का दर्द होता है लेकिन पेशेंट उसके साथ रहता है। मुझे कांस्टेंट डॉक्टर मुझे साल भर से पेन है, बहुत हल्का होता है लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गया है। क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, तब मैं आपके पास आया। तो पहले वो क्या था, वो धीरे धीरे हल्का था, माइल्ड टॉलरेबल था, बर्दाश्त करता था, लेकिन उसका नेचर अब यांग हो गया, बढ़ गया है। वो क्या है, इंटॉलरेशन, इंटॉलरेट हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया। ऐसे होता है। तो अभी वो क्या है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो क्या है, वो यांग टाइप का पेन, माइल्ड पेन है। वो क्या है, वो यिन टाइप का पेन है। शूटिंग पेन है, शार्प पेन है, शूटिंग पेन है, शार्प पेन, वो क्या है, वो यांग टाइप है। राइट? क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है ये यांग? यस और नॉट? यस सर। अभी पेशेंट ये बोलता है कि ये जो है, ये यिन और यांग को जो डायग्नोसिस है, ये कैसे डायग्नोस करेंगे। अभी यिन पेशेंट है, वो आपके पास आ रहा है, डॉक्टर मुझे पेन होता है, वो झुक के चल रहा है। क्या झुक के चल रहा है। एक पेशेंट आता है, उसको पेन है तो होता है लेकिन वो नॉर्मल चलता है। अभी वो जो झुक रहा है, जो बॉडी बैंड हो रही है, बॉडी जो उसकी जो बैंड हो रही है, वो क्या हो रही है, वो यिन हो रही है। उसको क्या चाहिए, बॉडी को उठाने के लिए यांग चाहिए।
जैसे पार्किंसन वगैरह में आपने देखा है ना, हैव यू सीन द पार्किंसन पेशेंट, वो क्या होता है, झुक जाता है, ये हो जाता है। ऐसे में क्या की यहाँ चाहिए, पैरालिसिस हो गया, क्या एक क्लॉट आ गया, मूवमेंट खत्म हो गया, हाथ नहीं उठता, छूट जाता है, हाथ ऐसे उठाते छूट जाता है, गिर जाता है, क्या उसके अंदर यांग फोर्स नहीं है, हाथ आपका यिन हो गया। उसको उठाने के लिए क्या चाहिए, वो यांग चाहिए आपको, उसके हाथ को मोटर एबिलिटीज को मेंटेन करने के लिए उसको यांग चाहिए, राइट? समझा, यिन और यांग? जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जो Yes, sir. yin और यांग का नेचर है, इसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। 5 एलिमेंट में मैंने क्या बताया, कैटेगरीज, जैसे 5 एलिमेंट बताया मैंने, क्या कि पेन कैसा है, पेन वहां पे शिफ्टिंग है, मूविंग है, उसके अंदर विंड एक्सेस है, ऑलरेडी उसमें क्या है, विंड है, विंड क्या मीन्स उसके अंदर विंड है, वहां पे पेशेंट को उस जगह पे ज्वाइंट्स के अंदर हीट है, वहां पे आपने ज्वाइंट को देखा, वहां पे स्वेलिंग है, वहां पे क्या है, स्वेलिंग है, स्वेलिंग क्या बताती है, ह्यूमिडिटी इज देयर, वो क्या ज्वाइंट्स क्या बिल्कुल ड्राई हो गया, वहां मूवमेंट नहीं, वहां पे मेटल एलिमेंट की डिफिशियंसी है। ज्वाइंट के अंदर लुब्रिकेशन का काम कौन करता है, मेटल काम करता है, और बिल्कुल फिक्स हो गया, फ्रीज हो गया, वाटर हो गया, तो यहाँ पे क्या है, वो कोल्ड टाइप के है, वहां पे बिल्कुल स्टिफ हो गया। जैसे फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर का मतलब वो किससे लिया गया, फ्रीज से लिया गया, वो क्या होता है, फ्रीज हो गया, फ्रीज हो जाने से वो बिल्कुल निकी हो गया, वो बिल्कुल। निकी मुझे बड़े गड़बड़ थे हुए ये थे प्लीज तो आप क्लास गड़बड़ थे हुए जरा अपने आप को आवाज म्यूट बड़े करके, आगे हुए हेलो, आप लोग क्लास अटेंड कर रही है तो एटलीस्ट आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप क्लास अटेंड कर रही तो म्यूट होकर के रखें प्लीज, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नेचर समझ जाओगे, नेचर ऑफ पेन और काइंड ऑफ पेन के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, यिन और यांग को देखना होगा, क्लियर, समझा? हेलो, Yes, sir. तो किस टाइप का पेन है, यानी टाइप यिन, उसको क्या है, डिवाइड करेंगे आपको, क्या आइदर इज ए यिन और आइदर इज ए यांग, यिन टाइप का पेन है। अब यहाँ पे हम यिन और यांग को क्यों पढ़ें, क्यों समझें, तो बताया कि अगर यिन टाइप का पेन है तो उसका ट्रीटमेंट यांग होगा, और यांग टाइप का पेन है तो उसका ट्रीटमेंट यिन होगा। यानी कि यिन और यांग अगर इम्बैलेंस हुआ है, यानी यिन टाइप है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, यांग पे होगा, और यांग टाइप ऑफ पेशेंट है तो ट्रीटमेंट कहाँ होगा, यिन टाइप पे होगा। तो अभी वो यिन और यांग पे कैसे हम समझें, अब इसके लिए बॉडी को डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरीज, फ्रंट बैक। तो फ्रंट क्या है, यिन है, कंपेयर किससे किया, बैक। फिर बॉडी को डिवाइड किया गया लेफ्ट एंड राइट, तो ठीक, सॉरी, लोअर एंड अपर, तो लोअर इज ए यिन एंड अपर इज ए यांग। तो अभी बताया गया कि अगर लोअर में पेन है तो आप अपर में खाली पॉइंट को सिलेक्शन कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, आपको मैं बताऊंगा, रिजल्ट दिखलाऊंगा, जब ये क्लासेस स्टार्टेड हो जाएगी उसके अंदर मैं आपको रिजल्ट दिखलाऊंगा, और आपको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर इसको आप अपनी आंखों से देखोगे उसको, आपको खुद तब बिलीव होगा कि कैसे, अभी उसको नी पे पेन था, हमने उसके शोल्डर एल्बो जॉइंट को चेक किया और ट्रीटमेंट दिया, उसके नी पेन चला गया, कैसे हुआ, वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे क्या है कि हमने बॉडी को डिवाइड कैसे किया, बॉडी को डिवाइड कैसे किया, बॉडी ये हमारी बॉडी है, इसको डिवाइड कैसे किया, फ्रंट टू बैक ये, और अपर टू लोअर, तो अपर पोर्शन इज ए यांग एंड द लोअर इज ए यिन, राइट? तो ये क्या है, ये यिन है और ये यांग है। तो पेशेंट ने बोला कि मुझे अगर यांग साइड में पेन है, अभी क्या है, एक्यूपंक्चर से
अगर वो यांग नेचर पेन है, यांग नेचर पेन है, तो ट्रीटमेंट आपका कहाँ पे होगा, वो यिन पे आएगा। और सॉरी, और अगर वो यिन टाइप ऑफ पेन है तो ट्रीटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यांग, यानी कि अपोजिट में देना पड़ेगा। वो क्या करेगा, जो यिन और यांग एक बैलेंस हुआ वो उसको ये बैलेंस करेगा। अपर पोर्शन अगर बॉडी में पेन है, आप लोअर में दे दिए, उसका पेन चला जाएगा। और लोअर बॉडी में पेन है, अपर साइड में पेन ट्रीटमेंट दीजिएगा, चला। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर कि पेन कहीं है और ट्रीटमेंट आप कहीं और दूसरी जगह देते हैं और पेशेंट को आराम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया LU7 फॉर द सर्वाइकल, तो सर्वाइकल कहाँ पे है, यहाँ पे। LU7 कहाँ पे मिलता है, रिज जॉइंट पे होता है, राइट है। तो यहाँ पे देने से सर्वाइकल का पेन कैसे चला जाता है। शोल्डर पेन के लिए, शोल्डर पेन है, अभी यहाँ पे कुछ मैं आपको डिजिटल पॉइंट बताता हूँ। अभी शोल्डर पेन है, कंप्लीट पढ़ने जानने के लिए आपको कोर्स कंटिन्यू करना होगा। शोल्डर पेन है तो उसके लिए क्या है, एक पेन दिया, पॉइंट देंगे स्टमक 38। अब ये कहाँ पे मिलता है, नी ज्वाइंट जो होता है और एंकल ज्वाइंट, इसके सेंटर में पॉइंट आता है स्टमक 38, नी और एंकल ज्वाइंट के बीच में, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, शोल्डर पे। आप ट्रीटमेंट कहाँ पे दे रहे हो, लेग पे, और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल पेन है, उसका ट्रीटमेंट आप कहाँ पे दे रहे हो, LU7। यहाँ कहाँ पे मिलता है, ये रिज जॉइंट से 1.5 to लो, और यू स्टाइलेट प्रोसीजर ऑफ द रेडियस, वहां पे आप देते हो। जैसे आप नीडल इंसर्ट करते हो, पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिलता है सर्वाइकल। वो किसी भी टाइप का सर्वाइकल पेन हो, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस हो, कुछ भी हो। शोल्डर पेन है, अब वो फ्रोजन शोल्डर हो, किसी टाइप का पेन हो, लेकिन जैसे स्टमक 38 पे आप ट्रीटमेंट दोगे, शोल्डर पेन उसका रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर। तो यहाँ पे क्या आ गया कि यिन और यांग को समझने के लिए आपको क्या है कि इसको समझना है कि यिन और यांग और 5 एलिमेंट, ये नेचर क्या है डिजीज का, यिन टाइप और यांग टाइप। अभी इसके अंदर बताया है कि इसके अंदर जब हम पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसको डायग्नोज करते हैं। वन इज एक्यूट, वन इज एक्यूट और वन इज क्रॉनिक। वन इज एक्यूट, वन इज क्रॉनिक। तो एक्यूट को बताया कि वो क्या है, वो नेचर इसकी यांग है। कोई पेशेंट आता है, बोलता मुझे 2 दिन से 4 दिन से प्रॉब्लम है, वो क्या है, एक्यूट प्रॉब्लम है, यांग है। कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे 3 मंथ से प्रॉब्लम है। दोनों को, एक क्या बोलता है 1 वीक से है, दोनों को नी पेन है, लेकिन वो एक्यूट है, वो यांग है। क्रॉनिक क्या है, वो यिन है। तो ऐसे में आपका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। तो यिन और यांग और 5 एलिमेंट, ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, राइट। अब यहाँ पे जो वर्क करता है वो क्या होता है, बॉडी में मेरिडियन होती है। अब यहाँ पे जो ये मेरिडियन आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पैथवे। ये क्या होती है, दिस इज कॉल्ड द पैथवे। पैथवे क्या करता है, पैथवे में एनर्जी फ्लो करती है, पैथवे में एनर्जी फ्लो करती है। जितने भी हमारे पैथवे हैं उसके अंदर एनर्जी फ्लो करती है। तो हाउ मेनी मेरिडियन, देयर इज अ 12 रेगुलर मेरिडियन, इट्स कॉल्ड द 12 रेगुलर मेरिडियन। तो ये 12 रेगुलर मेरिडियन एंड द 2 इज अ कंट्रोलर, 2 इज अ कंट्रोलर। तो इसके अंदर भी यिन और यांग है, तो क्या है, 6 यिन मेरिडियन है और 6 यांग मेरिडियन है। तो 6 यिन मेरिडियन, 6 यांग मेरिडियन, इसकी एक कंट्रोलर यिन की और एक कंट्रोलर यांग की, यानी कि 12 रेगुलर मेरिडियन, 2 इज ए कंट्रोलर। इसके अंदर जो होता है, ये क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, ये एनर्जी का फ्लो होता है। ये जितना आप देख रहे हैं इसका नाम मेरिडियन। मेरिडियन के अंदर क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। यहाँ पे आप फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में आप देखेंगे तो ये सारे आपको जो लाइन दिख रहे हैं, ये क्या है, मेरिडियन के पैथवे है।
मेरिडियन के पैथवे में यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है। जब एनर्जी का फ्लो, अब एनर्जी में क्या फ्लो होता है, क्या चीज चलती है, वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। वो एनर्जी में चलती है हमारे बॉडी के अंदर ची, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। ये एनर्जी का जो फ्लो होता है उसके अंदर क्या होता है, ची, वाइटल फोर्स, ब्लड, ब्लड लिक्विड एंड बॉडी फ्लूइड। अब ये जो ची होती है, एनर्जी फ्लो जो होता है, ये ची क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ये जो मेरिडियन है इसी में रेगुलर ये मूव करता है। ची जब मूव करता है तो साथ में ब्लड को मूव कराता है। विदाउट ची ब्लड कैन नॉट मूव। तो जब ब्लड की मूवमेंट होती है उसके लिए हमारी बॉडी में ची की जरूरत होती है। तो ची क्या होती है, एक तो होती है हमारे पार्टिकुलर ऑर्गन की ची, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन जैसे ऊपर से लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये इन ऑर्गन है। और जितने भी यंग ऑर्गन है, स्टमक, स्मॉल गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ये यंग है। तो जितने भी यंग ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर एक एनर्जी होती है जिसे एक्यूपंक्चर में ची कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ची ऑफ द ऑर्गन, ची ऑफ द बॉडी, ये दोनों होती है। अभी कोई बोलता है कि मुझे पूरी बॉडी में मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, या तो पूरी बॉडी की एनर्जी लेवल गिरी हुई है, या तो किसी पार्टिकुलर ऑर्गन की एनर्जी इम्बैलेंस हुई है जिसकी वजह से आपकी बॉडी इफेक्टेड हुई, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको कफ एंड कोल्ड हो गया, अभी यहाँ पे लंग्स किसमें इम्बैलेंस हुई है, ची किसमें इम्बैलेंस हुई है, लंग्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल है वो कहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, लंग्स के अंदर इम्बैलेंस हुआ। लेकिन उससे क्या हुआ, पूरी बॉडी आपकी इफेक्टेड होती है, नहीं होती है, यस और नॉट? यस। ऐसा नहीं कि लंग्स बीमार हो, चलो भाई अभी लंग्स बीमार, उसको रहने छोड़ दो, घर पे हम लोग चलते घूमने, ऐसा नहीं होता ना। उसी तरह हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उसके अंदर अगर ची की मूवमेंट प्रॉपर है, ची जितनी सफिशिएंट में चाहिए, अगर वो मिल जाती है तो हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, राइट। हमारे ऑर्गन हेल्दी होते हैं। उसी तरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है वो पूरी बॉडी में कैसे एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अब एक्सरसाइज करते हैं, अब जब एक्सरसाइज करते हैं, अभी योगा में नहीं जा रहा, वो अलग सी बात है, लेकिन आप एक्सरसाइज जब करते हैं आपकी क्या पूरी बॉडी आपकी क्या लगती है, आपको आफ्टर एक्सरसाइज क्या फील करते हैं, एनर्जी फील होती है किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन में या पूरी बॉडी में? पूरे बॉडी में। पूरी बॉडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका जो एनर्जी का लेवल वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ची होती है जिसे वाइटल एनर्जी कहते हैं, वो इंक्रीज होता है। ब्लड का सर्कुलेशन भी क्या होता है, फास्ट हो जाता है। जब आप कुछ वर्क करते हैं, जॉगिंग, एक्सरसाइज या जो कुछ भी करते हैं, आपकी बॉडी से स्वेटिंग निकलती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके फेस के ऊपर एक ग्लो आ जाता है। कभी चेक किया आपने? आफ्टर एक्सरसाइज आपका फेस डल नहीं रहता, आपके फेस ग्लो करता है। क्यों करता है? हैव यू चेक और नॉट? कभी आपने अपने फेस को देखा एक्सरसाइज के बाद? यस सर। क्या क्या फर्क होता है? रेडनेस। फ्रेशनेस आती है। ऐसा नहीं कि जिम के बाद आप पार्लर जाती है, नहीं ना। नहीं सर। क्यों फ्रेशनेस आती है? क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो आपका जो एनर्जी का जो लेवल वो इंक्रीज हो जाता है। जब इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या है, वो हमारी बॉडी दो तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, एक आउटसाइड होती है और एक इनसाइड होती है। यानी जो हमारा आउटसाइड है वो क्या, वो यांग, यानी कि अगर हम हेल्दी होते हैं तो हमारा वो क्या है,
वो रिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है? फेस पे आता है। अनहेल्दी होते हैं तो उसका भी रिफ्लेक्शन फेस पे आता है। तो इसके अंदर जो टंग, हम लोग में जो एक्यूपंक्चर में जो डायग्नोसिस पार्ट है, टंग, पल्स, फेस, ये सारी चीजें दिखती है। जब आप जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपका पल्स का रेट हाई हो जाता है, पल्स इंक्रीज हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो चीज है, मूवमेंट, वो फास्ट होने लगती है, जिससे ये ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है। और बॉडी फ्लूइड्स क्या होती है? बॉडी फ्लूइड्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आंखों से टीर, फ्लेगम का निकलना, स्वेटिंग निकलना, यूरिन निकलना, ये सारी चीजें क्या है। और जो हमारे जॉइंट्स के अंदर कैविटी होती है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है, वो भी क्या? बॉडी फ्लूइड होती है। तो चीफ ब्लड बॉडी फ्लूइड ये हमारी बॉडी के अंदर तभी सफिशिएंट हो सकती है जब हमारी वे ऑफ वर्किंग, डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, लाइफ, ये सारी चीजें सब प्रॉपर होगी, तब ये चीज जाके एक कंप्लीट बॉडी हमको हेल्दी और बॉडी मिलती है। और हेल्दी बॉडी हमेशा याद रखिएगा कि वो साथ में हैप्पी होती है। अनहेल्दी बॉडी अनहैप्पी होती है। हमेशा आप पेशेंट को जब भी देखेंगे, जो डिप्रेस पेशेंट होगा, बहुत हेल्दी पेशेंट है, कभी भी जल्दी डिप्रेस नहीं होता। अगर वो होता है तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर फाइटिंग का जो होता है वो ज्यादा होता है, वो उसकी बॉडी उतनी इफेक्टेड नहीं होती। तो आज हम लोगों ने 5 एलिमेंट, यिन यांग और ची ब्लड बॉडी फ्लूइड को जाना, पेन मैनेजमेंट। नाउ टाइम फॉर योर क्वेश्चन आंसर। यस, सर टॉपिक से हटके रहेगा चलेगा? और पूछिए, चलेगा तो चला देंगे। सर ये गर्दन पे इलेक्ट्रोथेरेपी, गर्दन पे करना, पेट पे करना, सर पे करना, कैसा है? इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब? एक्यूपंक्चर विद इलेक्ट्रोथेरेपी। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ना? यस सर, यस। स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, ये आपको क्लास के अंदर बताया जाएगा कि किस पॉइंट पे दिया जाता है, किस पॉइंट पे नहीं, बॉडी के किस कंडीशन पे दिया जाएगा, किस कंडीशन पे नहीं दिया। अब यहाँ पर है कि ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन अगर आप देंगे तो इसके अंदर देयर इज 3 वेव्स, इसके अंदर 3 वेव्स आता है, टीटी, डीसी और इंटरमिटेंट। जैसे कंटिन्यू डीसी को, और ये 3 आते हैं। तो अब ये कौन सी वेव किस कंडीशन में देना होगा वो, 2 मिनट रुको। वो सारी चीजें आपको क्लास में इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन का जो डिवाइस यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करना, किस कंडीशन में यूज नहीं करना, किस डिजीज में कौन सी वेव का यूज करना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। राइट? जिसका क्वेश्चन था आपको आंसर मिल गया। सर पेट पे करना कैसा है? पेट पे भी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, पेट पे क्यों करेंगे? आप किस चीज के लिए कर रहे हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन का आपको अगर यूज करना, तो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? इसके अंदर एक होता है मैनुअल, एक होता है मैनुअल, जिसे हम लोग मैनुअल कहते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रिक। एक मैनुअल स्टिमुलेशन होता है विद द हैंड किया जाता है, और एक दूसरा होता है कि मैनुअल स्टिमुलेशन के बाद इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन किया जाता है। तो पेट पे अगर हम दे रहे तो किस वजह से दे रहे? कोई प्रॉब्लम होगी तो देंगे ना। नहीं, अगर पेट में अगर दर्द है उसके हिसाब से समझो पेट इलेक्ट्रो। में दर्द है, या यस, अगर एब्डोमिनल पेन है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कॉज। इसका कॉज क्या है? अल्सर है, नहीं दे सकते। पैप्टिक अल्सर है, नहीं दे सकते। नहीं ना भाई, चालू है ना मेरा, क्या बोला दीदी? पैप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, नहीं दे सकते। राइट? ओके सर। तो यहाँ पे आपको बिफोर ट्रीटमेंट आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, क्यों नहीं दे सर, रहे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि पेट पे कभी भी एक्यूपंक्चर नहीं होता है। ये बात सही है या गलत है? पेट पे और सर पे? ऐसा गलत, ये तो कहना गलत है। नहीं ना, सर पे भी कर सकते हैं ना, मतलब एक्यूपंक्चर विद इलेक्ट्रोथेरेपी। नहीं नहीं, आप हेड पे भी दे सकते हैं, एब्डोमेन पे भी दे सकते हैं, हैंड बॉडी में आप किसी पार्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन विद कंडीशन, विद प्रिकॉशन। इलेक्ट्रोथेरेपी भी
हाँ, एक्यूपंक्चर विद इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन आप एक्यूपंक्चर के साथ दे सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस कंडीशन में यूज किया जाता है, किस कंडीशन में यूज। हाँ वो सही बात है, सही बात, वो तो सही बात। ठीक है, इसके ओके लिए सर। आपको प्रॉपर क्लास ज्वाइन करके ये पूरी प्रॉपर, अभी हम मंडे से ये प्रॉपर क्लास अभी आपकी 3:30 to 5 कंटिन्यू चलेगी। इसके अंदर आपको पूरी चीजें बताई जाएंगी। राइट, ओके एक एक चीज अभी ये है, टेस्ट मशीन का यूज कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आता है एक्यूपंक्चर में, जो आता है द फोर्थ थिंग बिफोर द ट्रीटमेंट, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, ऑल्फैक्शन, इंक्वायरी एंड पल्पेशन। तो अभी यहाँ पे हम जब डायग्नोस करते हैं तो डायग्नोस में बॉडी शेप, टंग, हेड, फेस, लिम्स वगैरह को देखते हैं। ऑस्कल्टेशन में क्या देखते हैं, ऐसे तो वॉइस, ब्रीदिंग पैटर्न, ये सारी चीजें देखते हैं। इंक्वायरी में क्या देखते हैं कि पेशेंट से पूछते हैं कि कब ये प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई, क्या ये पूरी केस हिस्ट्री दिया था। और पल्पेशन में वो हम देखते हैं, पल्पेशन में पल्स को देखते हैं और ज्वाइंट को भी पल्पेट किया जाता है। ओके, ठीक है। फिर हमने 5 एलिमेंट थ्योरी और यूनियन में पढ़ा, चीफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड को। अब यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ रीडिंग पे हम यहाँ पे एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, यानी एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है और डिक्रीज किया जाता है। यहाँ पे एनर्जी एक्सेस है, यांग कंडीशन पे है। अगर यांग कंडीशन की डिजीज है, यांग की डिजीज है, एक्यूट है, तो वहां पे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। और अगर यिन है, क्रॉनिक है, तो क्रॉनिक में हमेशा पॉइंट को इंक्रीज करें। वो टेक्निक्स ऑफ रीडिंग पे आप सीखेंगे। मॉक्सीबस्चन, तो मॉक्सीबस्चन में आप किस तरह से मॉक्सा देते हैं, डायरेक्ट मॉक्सीबस्चन और इनडायरेक्ट मॉक्सीबस्चन। तो किस कंडीशन में आप डायरेक्ट मॉक्सीबस्चन दे सकते हैं, किस कंडीशन में आप इनडायरेक्ट मॉक्सीबस्चन देखेंगे, लेकिन ये आपके डायग्नोसिस के बाद ही है, जो हर कंडीशन में नहीं होगा। जैसे आपको किसी का क्वेश्चन था कि फायर कपिंग और ये मूवी कपिंग किस कंडीशन पे थे, तो अभी यहाँ पे क्या, ये कोल्ड है, ये क्या है, जिन है, और ये यांग है। तो जिन के अंदर कभी भी आप कोल्ड नहीं देंगे और यांग के अंदर कभी भी आप हीट नहीं देंगे, तो ऑलरेडी उसके बॉडी में यांग बढ़ी हुई है। राइट, फिर इसके बाद आता है हिजामा, जिसमें हम लोग ब्लड लेटिंग कहते हैं। ब्लड लेटिंग के भी अपने लॉज है, उस लॉज के हिसाब से देते हैं। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्ट, यहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा स्पाइन को एनालिसिस करने के बाद उसके स्पाइन यानी पॉस्चर का करेक्शन करना पड़ेगा। देन यू कैन आफ्टर स्टार्ट द ट्रीटमेंट, और आपका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही परफेक्ट होगा। तब उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान बनता है, और कि आपको पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबस्चन कपिंग, और पॉइंट का सिलेक्शन कैसे आप सिलेक्शन करेंगे, कितने वहां पे कितने निडल को इंसर्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। राइट, आई होप गाइस कि आपकी जो भी डाउट्स थे मैंने ट्राई किया। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मैंने कोशिश किया कि आपकी जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया, या आपकी जो भी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इफ यू एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, अगर कुछ भी आपको पूछना है, तो यहाँ पर ये 2 नंबर है, 9167586025, ये इंस्टीट्यूट का नंबर है। और दिस इज माय पर्सनल नंबर 9323712037। दिस इज माय पर्सनल नंबर। तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे विद योर क्वेश्चन, तो जब मैं फ्री होगा तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन। राइट, क्लियर? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार के लिए। थैंक यू एंड गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह।